Difficulty in engaging with the people. Hello Junaid bhai, hope you're doing well. Please don't take my name. I'm in my mid 20s working in a software house. I have moved to Lahore with my parents in 2019. By the way, लाहौर की एक ही सड़क पे 200 सॉफ्टवेयर हाउस हैं या 1 स्क्वायर किलोमीटर रेडियस पे 200 या 400 हैं. दिस इज इन जौहर टाउन. समबडी नीड्स टू वर्क ऑन दिस कि क्यों है और ये इतना बड़ा स्प्लर्च कैसे हुआ. वाई इज लाहौर लीडिंग इन द सॉफ्टवेयर बिजनेस और इज इट कराची. लेट मी नो. आई थिंक इट्स लाहौर बिकॉज या तो शायद मैं लाहौर में जिन लोगों के साथ होता हूँ उनका टेक से ताल्लुक़ है तो मुझे शायद ज़्यादा नज़र आता है टेक. यहाँ पे उतना नज़र नहीं आता. My problem is that I've realized that despite having a great deal of knowledge and experience, I cannot engage in conversation and discussions no matter how hard I try. I also mumble sometimes or speak too fast when I speak, which has also made me lose confidence. Most of the time, I can't express what I want to say. For that, I have seen many people ignoring what I'm talking about. I have witnessed my friends avoiding me since school no matter how hard I try to open up a conversation. I'm in their trust and they have never treated me disrespectfully, but I constantly feel like they become tired or bored of me, which is just heartbreaking. It's been happening since the beginning. I felt like they don't actually appreciate my company. Maybe I'm not funny or I don't like to do gossips. From my previous office, I made 2 friends, one male and one female. At first, we were great friends, and I began to have feelings for that guy, but I kept quiet. After a while, those feelings grew stronger. I tried not to feel them, but I couldn't. After that, I realized they had become too close to each other, and I felt left out. During that, 4 more people joined our group. However, they both became too close while I was just sitting and conversing with others. I realized I'm not as intelligent and keen as them. They are all very nice people, yet they become bored with me. I often try to start a conversation hoping to be funny, but I can't. My family relocated to the city due to my father's job, but I had to leave my old friends behind. So they are my only friends right now. But the point is, it's been occurring to me since school. I have many friends, but मुझे अच्छी तरह याद है मेरे होते हुए अगर कोई दूसरी दोस्त बन गई तो मुझे छोड़ देते हैं. Even in college and university, ये तो मेरे साथ भी होता है. I'm always connecting people. So for example, if I have a friend and then I have another friend and I feel like यार ये and this person have a lot of similar interests, so I would make sure कि they get to know each other and eventually मैं ही equation से out होता हूँ. But it makes me so depressed that these things are happening to me. I had to leave that job due to some issues and join another office where I'm experiencing the same thing. The girl the girl used to be my friend, but she now hangs out with the new girl and ignores me. This is considerably harder to describe. Junaid bhai, I enjoy adventures, learning new things, and socializing with friends. I'm not sure where I'm lacking. I understand that it is not my responsibility to make everyone happy, yet it makes me sad to learn that others are bored with me. I could clearly see it. I once asked a friend to accompany me to an event and she said, अगर बाकी सब चलें तो चलते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा. That made me really angry. It is increasingly difficult to ignore. I'm doing everything. I love my friends and they are aware of this. My father wants me to go abroad for masters, but I'm terrified of what will happen if the same thing happens there. Please advise me what to do or how to avoid feeling these things, because I've seen this happening to me that जब दिल भर गया मक्खी की तरह फेंक दिया और जब हेल्प की नीड हुई तो फिर मुझे याद किया. Even after that guy and watching him get closer to another girl and getting away from me, I was there for him every time. I helped him, took stand for him when he almost lost his job, and I remember that one friend refused to help him due to her reason. I know I don't need this guy in my life and I have to focus on my career, but I feel too much hard. I don't have any issues with that girl. Maybe I shouldn't if they are in relationship too, but whenever if I got to know that they are in relationship, I know it will break my heart because ये सब मेरे सामने हुआ और पता नहीं चला. I feel very disrespectful and left out, but I can't do anything. I haven't told that guy about my feelings because I think he only considered me as a friend and maybe he rejects me. Sorry for the long email. So जैसे कि आपने सुना, ये एक लड़की हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं. उनको लगता है कि उनसे लोग बोर हो जाते हैं या फिर ये कि वो उनको छोड़ देते हैं और ग्रुप से अलग कर देते हैं या बेसिकली कटा देते हैं.
ये प्रॉब्लम रहता है बहुत से लोगों को. अब इसमें होता ये है कि यू नो व्हेन यू ट्राई टू विन समवन्स अप्रूवल, you get really really excited because you try too hard, and when you try too hard, others can see कि you're trying too hard, तो फिर अगला जो है अपने आप को थोड़ा पेडिस्टल पे देखता है, and then of course they don't treat you well. इसमें बेहतर यही होगा कि आप ये जो इतने फंबल्स कर रही हैं, इतनी मिस्टेक्स कर रही हैं, वो इसलिए बिकॉज मे बी you're speaking out of extreme excitement and you are eager to win their approval. So जब आप वैलिडेशन किसी और के हाथ में देते हैं, जब वैलिडेशन सीख कर देते हैं, तो आप पावर किसी और के हाथ में देते हैं. जब व्हेन पीपल रियलाइज कि दे हैव पावर टू अब्यूज़ यू, दे अब्यूज़ यू. इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल थिंग टू डू. सो आई वुड इन योर केस, देखिए साइलेंस जो है ना, वो साइलेंस इज़ लाउडर देन वर्ड्स. समटाइम्स नॉट आंसरिंग इज़ एन आंसर इट सेल्फ. मैंने ये सीखा है कि पहले तोलो फिर बोलो वाली बात है. कुछ लोग बहुत बातूनी होते हैं. मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, मैं जनरल एक बात कह रहा हूँ. कुछ लोग बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, एंड देन इट गेट्स टू द पॉइंट ऑफ अनोयंस. और फिर लोग कहते हैं कि यार ये पकाता बहुत है. तो सोचें कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि you're just way too talkative. Again, being talkative is not a problem. Being irrelevant is a problem. So अगर आपको relevant चीज़ पे बात नहीं कर रही है, and you're just like beating around the bush, or maybe you're gossiping, and maybe some people don't like those things. तो ये भी एक वजह हो सकती है. बहुत सारी वजह. एक बहुत बड़ी वजह है, अगेन आई डोंट नो यू, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल नीड टू नो दिस. हाइजीन इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू लोगों में. इट कुड बी बॉडी ओडर, इट कुड बी ओरल, इट कुड बी एनीथिंग. सो बहुत सारे लोग अवॉइडेंट भी हो जाते हैं बिकॉज हम मुंह पे बोल नहीं पा रहे होते कि यार तुमसे बड़ी स्मेल आती है, या जो दिस दैट वट एवर. बहुत से लोग, एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा, एवरी टाइम व्हेन समवन ऑफर्स यू अ गम, जस्ट टेक इट. क्योंकि वो आउट ऑफ पोलाइटनेस ही आपको दे रहे होंगे. दैट कुड, कुछ लोग वैसे ही खुद खा रहे थे तो आपको भी ऑफ़र कर दी. हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इसीलिए ऑफ़र कर रहे हैं कि आपके मुंह से बदबू आ रही है. बट कभी कभी दिस इज़ लाइक द मोस्ट पोलाइट वे टू टेल समवन. बहुत सारे फैक्ट, हाइजीन इज़ अ बिग बिग इशू. तो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी अवॉइड करने लग जाते हैं. सो पीपल नीड टू लुक इन टू दैट. मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं कह रहा, मैं वैसे जनरल एक बात कर रहा हूँ. व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू सीक स्पीच थेरेपी. यू नीड टू सी अ स्पेशलिस्ट अबाउट इट कि ऐसा क्यों होता है. why is it happening with you, why are people leaving you behind. Again, इसमें फिर ये भी होता है कि वो बच्चे जिनको बचपन में इतना who were not loved enough or were not hugged enough, तो फिर वो अपना जो वैलिडेशन है वो दूसरों में ढूंढते हैं. एंड बिकॉज दे वर नॉट गिवन दैट लव, दैट काइंडनेस, दैट फॉन्डनेस, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ईगर हो जाते हैं. एंड देन in pursuit of that validation, they end up fumbling a lot, they end up making a lot of mistakes, and फिर वो उसका रिजल्टेंट फिर ये होता है कि फिर दिन आप एक स्पायरल में फंस जाते हैं कि आपको लगता है ये बंदा मुझसे दूर जा रहा है, देन यू ट्राई इवन हार्डर, एंड देन यू फक अप इवन मोर, एंड देन वो और दूर चला जाता है, एंड देन इवेंचुअली दोज पीपल लीव यू. सो दैट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न कि you're way too eager to win approval of other people. What you need to do is you need to be calm and composed and be very confident in your own skin. माशाल्लाह, you work for a software house, तो आप दिमाग तो ओके हो गई. एनालिटिकल तो आप होंगी ज़िंदगी में, सो वो एनालिटिक्स जो है अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करें. एंड बी शांत, ठीक है ना. कम बोलने में बहुत ज़्यादा हिकमत होती है. ट्राई टू लिसन मोर एंड स्पीक लेस, and speak only relevant things. Also, you need to find a group where your inputs are valued, where your thoughts are valued, where your company is being valued. Baki, in order to have more substance in your speech, one way to do is you need to read a lot, you need to learn a lot of things, चाहे वो आपकी फील्ड से रिलेवेंट हो या ना हो. इट एड्स मोर वैल्यू टू योर कैरेक्टर. वो कहते हैं ना, नॉलेज इज़ पावर, वो ऐसे ही नहीं कहते.
आई मीन मेरे पास कोई ख़ास कोई डिग्री नहीं है, बट लाइक इफ़ 100,000 पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो और माई अदर चैनल्स, इट्स प्रॉब्ली बिकॉज आई हैव ट्राइड टू लर्न मोर एंड मोर विदाउट एनी हेसिटेशन कि यार ये रेलिवेंट है नहीं है, चीज़ें काम आ जाती हैं. सो मेक श्योर यू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ introspect is also very important. I would suggest कि you need to see a therapist, चाहे वो speech therapist हो या वो consultant हो. I think a lot of this is stemming from the fact कि you're trying too hard. कुछ लोग होते हैं दे आपने वो फिल्मों भी देखा होगा. आई थिंक क्रूल इंटेंशंस में भी ऐसा ही था, या किसी वो जो एक टिपिकल कॉलेज की एक फिल्म होती है वेयर देयर इज़ प्रोटैगनिस्ट, वो मोटे चश्मे वाली लड़की होती है, शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू हार्ड एंड नोबडी लाइक्स हर, उसको चौक भी मार रहे होते हैं, दिस दैट इज़ बिकॉज शी इज़ वे टू ईगर. तो जब आप बहुत नीडी होते हो ना, तो फिर अगले आपको जूते की नोक पे ही रखते हैं. सो यू डोंट नीड टू कम अक्रॉस एज नीडी, यू नीड टू कम अक्रॉस एज कि मैं अपनी फेवरेट हूँ. यू नो, फुलफिलमेंट जब आपके अंदर से होगी ना कि यार मैं अपने लिए बहुत हूँ, मुझे दूसरों की ज़रूरत नहीं है, तो दैट्स व्हेन पीपल नेचुरली गेट अट्रैक्टेड कि यार इसमें ऐसा क्या है कि इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, राइट. कॉन्फिडेंस इज़ द की. और दिस इज़ कमिंग फ्रॉम, देखो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में या तो लोग बिल्कुल ही मम हो जाते हैं या फिर वो ज़्यादा बोलते हैं. नाप तोल तभी होता है, तवाज़ुन ज़िंदगी में तभी होता है जब आपको पता होता है व्हेन यू नो कि मैं इस सिचुएशन को किस तरह मैंने डील करना है. व्हेन यू आर नॉट ईगर, जैसे एक पॉडकास्ट है इस मुल्क में, उसमें होस्ट की कोशिश ये नहीं होती कि जो सुन रहा है मैं उस थॉट से एक चीज़ कनेक्ट करूं और अगली थॉट पे जाऊं. उसकी सारी ईगरनेस होती है कि मैं जोक कहाँ मारूं ताकि ये वायरल हो कंटेंट. सो वो पॉडकास्ट नहीं होती, वो एक जोक सीकिंग अपॉर्चुनिटी चल रही होती है. सो अगेन, don't try too hard. Just be calm and composed in your own personality. Have more confidence. Again, easier said than done. अब आप जितना इसको सर पे लेंगी, आप चीज़ें उतनी स्पायरल होती रहेंगी, आप एक वर्लपूल में फंस जाएंगी और चीज़ें बुरी से बुरी होती जाएंगी. What you need to do is you need to have confidence कि when you lose people, it's actually them who lose you, because you are far more composed and far more sorted in your head than they will ever be. रही बात ये कि आपकी फीलिंग्स हैं किसी के लिए, अगर आप कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो कर लें, बट मैं तो कहता हूँ कर लें, क्योंकि ट्राइंग एंड फेलिंग इज़ बेटर देन फेलिंग टू ट्राई. कोई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नो होगा तो सह लेना, 2 दिन रो लेना, तीसरे दिन फिर हंस लेना, कुछ नहीं होगा. इस चीज़ों को सर पे सवार ना करें. जनरल नॉलेज बढ़ाएं, हॉबीज़ बढ़ाएं, यू नो, अपने अंदर ना आप वैल्यू एडिशन करें ताकि लोग खुद अट्रैक्ट हों आपकी पर्सनालिटी से. और जब मैंने एक चीज़ नोटिस की है, पीपल हु नो अ लॉट ऑफ थिंग्स और पीपल हु एक्सूड अ लॉट ऑफ वैल्यू, तो उनकी एक ऑरा ऐसा बन जाता है कि लोग नेचुरली ग्रेविटेट करते हैं. इंसान जो ना प्लैनेट्स की तरह होते हैं, कुछ का एनवायरनमेंट हैबिटेबल होता है, इतना अच्छा होता है कि दूसरी स्टार्स भी आके और मून्स आके आसपास ग्रेविटेट करते हैं. कुछ का इतना टेरेन इतना ख़राब होता है, एटमॉस्फेयर इतना ख़राब होता है कि रिपेल ही होते हैं सारे. सो आप जब अपने अंदर से खूबसूरत होंगी हर लिहाज से, राइट, फुलफिल्ड होंगी, नॉलेजेबल होंगी, वेल इक्विप्ड होंगी, तो आपका ऑरा ही डिफरेंट होगा. यू वुड वॉक डिफरेंटली, you would talk differently, and you would choose to talk differently, and you would choose when to say and when not to say, and that's the whole power. देखें, बोलना सबको आता है, किस वक्त क्या बोलना है असल चीज़ ही वही होती है. This is where people go wrong. They end up saying a lot of things that they don't mean. वो कहते हैं ना, गुस्से में कभी कुछ बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज you're driven by emotions, और फिर उसमें आप कुछ भी बोल दोगे. Similarly, when you're seeking people's approval, I'm not gonna lie, I was the same person not so long ago. हर मतलब ये सीख करना कि यार अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा, या आई नीड टू बी फ़नी, आई नीड टू बी दिस, कि मैं बस फिट इन हो जाऊँ किसी तरह. हल्ली वल्ली मर्ज़ी है भाई, आने वाले को रोको नहीं, जाने वाले को टोको नहीं. ये ज़िंदगी का फंडा बनाए, ज़िंदगी में बहुत पीस आ जाएगा. वरना फिर आप वो लोगों के पीछे भागते रहेंगे, लोग आगे भागते रहेंगे. अब मैं यहाँ पे अदनान सिद्दीकी वाली मिसाल तो दूंगा नहीं कि वो मक्खी की तरह होते हैं और वो मतलब हाथ मारोगे तो भागते रहेंगे, आप आराम से बैठ जाए तो ग्रेविटेट करेंगे. खैर, टू ईच देयर ओन. मगर ये कि प्लीज़
डू नॉट चेज पीपल, लेट देम चेज यू। आप उतनी ही वर्दी हैं जितना आपको लगता है कि दूसरे हैं। सो आप किसी से कम नहीं हैं, और ये तभी आएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, नेचुरल कॉन्फिडेंस होगा। यू कांट फेक दीज थिंग्स। फेक करेंगे, वो फेक इट टिल यू मेक इट, इस पे नहीं चलता। यू इट नीड्स टू बी एक्सूडेड। वो कहते हैं ना कि बोले बगैर आपकी चाल ढाल आपकी बात कर रही हो। सो दिस इज़ वाई मेन लाइक luxury watches, because they don't want to say those things. Their watch talks for them. Yeah, their shoes talks for them. I don't know if I'm just so sleepy right now. I'm so sorry. um, so कोशिश करें अपने आप को इतना इक्विप करें, वैल्यू एडिशन अपनी ज़िंदगी में ख़ुद करें कि दूसरे आपके आसपास हों, और दूसरे फिर मुझे ईमेल कर रहे हो कि यार मुझसे बात नहीं करती या मुझे जूते की नोक पे रखती है। सो डोंट वरी, ये होता है, ये फेस सब पे आता है। इट्स स्टेमिंग फ्रॉम ऑफ कोर्स lack of love, lack of attention, which is why you're seeking elsewhere, which is why you're seeking it fiercely. So be easy, be calm, चिल करें लाइफ में। कुछ नहीं हो रहा, किसी के आने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और किसी के जाने से भी कुछ नहीं होता। वो ऑक्सीजन नहीं है, यू विल स्टिल लिव। तो अगर आपके ग्रुप वाले अलग हो गए, होने दें, लेट देम बी हैप्पी, बट मेक श्योर यू वर्क ऑन योर सेल्फ सो गुड सो वेल कि देन दे स्टार्ट फीलिंग कि यार वी शुडंट हैव डन दिस। सो मेक श्योर, बट अगेन इस एनर्जी से काम ना करें कि आपने उनको बुरा दिखाना है। इस एनर्जी से काम करें बिकॉज यू वांट टू फील बेटर एंड यू वांट टू एक्सप्लोर मोर एंड यू वांट टू एक्सेल विद इन योर सेल्फ। सो डू दैट, वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।